الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. بعد وہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں. اسلامی بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ایک پیغام لے کر کے آتا ہے. حضرت عمر نے جو ایک اسلامی کیلنڈر لوگوں کے مشورے سے جاری کیا اور بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت موڑ تھے، اسلام کے بہت موڑ تھے، لیکن سب سے اہم موڑ کو بنیاد بنا کر کے اسلامی کیلنڈر کی ترتیب دی اور وہ ہجرت کو انہوں نے سامنے رکھا. اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب، سب سے اہم موڑ، جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک نئے نہج سے زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے اس کو سب سے اہم مانا اللہ کے رسول کی زندگی اور ہجری سال کی شروعات ہوئی. اللہ کے رسول کو کی ہجرت کو پہلا سال مان کر کے اور محرم الحرام کو عربی کے مہینے کو پہلا مہینہ مانا. پہلا مہینہ تھا ہی محرم الحرام. تو یہ مہینہ جب بھی آتا ہے یہ یاد دلاتا ہے ہمیں اس واقعے کی طرف. ہر سال یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کیلنڈر کو بنانے کا، اور مسلمانوں کو کیا بتانا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے مسلمانوں کو بتانے کے لیے. اس بار بھی آپ کو میں سرسری طور پر اس کے پس منظر اور اس کے مقصد پہ بتاؤں گا ہجرت کے تعلق سے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کے تحت کہ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیں، بار بار یاد دلاتے رہیں. ایک ہی بات کو بار بار یاد دلانا ان کو فائدہ دیتا ہے. ہر سال ہجرت کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بتائی جاتی ہے، اس کے مقصد اور تقاضے کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، یہاں تک کہ اگر اس کی جان خطرے میں ہو تو جان کی بھی بازی لگا دے. لیکن وہ جگہ، وہ شہر، وہ وطن، وہ علاقہ جہاں رہ رہا ہو اور اس پر ظلم ہو رہا ہو محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے اور اسلام پر آزادی سے عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو، اور کوئی ایسی جگہ اس سے بہتر اسے دکھ رہی ہو، کوئی ایسا وطن، کوئی ایسا علاقہ جہاں پہ وہ یہاں سے بہتر طور پر وہاں اسلام پہ عمل کر سکتا ہے اور آزادی سے عمل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اس وقت ہجرت کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے نماز کی طرح سے. ورنہ کل کو جب ہم کہیں گے ہم ایسے ماحول میں تھے، ہم کہاں سے عمل کرتے ہیں؟ ظالموں کی حکومت تھی، غیروں کی حکومت تھی، ہم اقلیت میں تھے، دبے کچلے تھے، مجبور تھے، تو فرشتے فوراً کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا.
کیا اللہ کی زمین بہت کشادہ نہیں تھی؟ کیا زمین کے حدود پر وہیں تک سمٹ کے رہ گئے تھے جہاں تم تھے، اور زمین کشادہ نہیں تھی جہاں تم ہجرت کر جاتے؟ تو یہ معذرت، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ جہاں ہم تھے ماحول ایسا نہیں تھا، پکڑ ہو جائے گی ہماری۔ تو سب کچھ چھوڑ دینا اللہ اس کے رسول کے رشتے کو بچانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو بچانے کے لیے ساری محبتوں کی قربانی، رشتہ داروں کی قربانی، مال و اولاد کی قربانی، چلتے پھرتے کاروبار کی قربانی، وطن کی محبت کی قربانی، ساری قربانیوں کو، ساری چیزوں کی قربانی دے دینا، یہ چیز کا نام ہجرت ہے۔ اور یہ صرف ہجرت مدینہ تک خاص نہیں تھا کہ مکے سے مدینہ ہجرت ہو گئی، صحابہ کرام نے ایک نئی ریاست بنا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی زندگی کی شروعات قرار دی، صحابہ کرام سے وہ ختم ہو گئی۔ نہیں، الہجرت لا تنقطع حتى تنقطع التوبہ، ہجرت قیامت تک باقی ہے، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ ولا تنقطع التوبہ حتى تنقطع الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها، توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج پچھم سے نہ طلوع ہو، قیامت کے قریب تک جاری رہے گا۔ تو ہجرت باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں اور مومنوں پہ ظلم ہوتا رہے گا، اس لیے قیامت تک اس کو باقی رکھا گیا، قیامت تک ظلم ہوتا رہے گا، جب بھی ضرورت پڑے گی ہجرت کرے اور ہجرت کا ثواب رہے گا۔ الہجرت تہدم ما کان قبلھا، معمولی ثواب نہیں ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو ڈھا دیتی ہے، مسمار کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یہ ہجرت کے فضیلت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے، اس آیت میں ایسے انہی لوگوں کا ذکر ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں ظلم سہنے کے بعد، ظلم کیے جانے کے بعد، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہم انہیں اچھا بدلہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں پتہ چلے، کاش انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے، صحابہ کرام کی ہجرت کے تعلق سے کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کی قربانیوں کے تعلق سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جب ان کو ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا چیزوں کی قربانی انہوں نے دی، اور وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ انہیں کے ساتھ خاص تھے۔ یہ بات بار بار ہے کہ قیامت تک یہ حالات آتے رہیں گے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، اور وہاں پہ دین کی پرواہ نہ کر کے آدمی اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار وطن کو بچا کے رکھنا، اور اسی میں اس کی جان چلی جائے تو وہ شہادت نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے رکا ہوا تھا۔ دین ایمان بچانے کے لیے اگر وہ نکل جاتا وہاں سے، اس کے بعد اگر موت ہوتی ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ آدمی ایک شہر کو نہیں چھوڑ پاتا، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن اس لیے نہیں جا پاتا کہ وہ تصوف کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ چیز ایک وہم کی طرح بیٹھی ہوتی ہے کہ یہاں میں ہوں، یہاں پھلتا پھولتا میرا کاروبار ہے، 10 سال 20 سال لگ گئے اتنا بڑا کاروبار کھڑا کرنے میں، اس کو چھوڑ کے کیسے جائیں ایک ایسے شہر میں جہاں کوئی آگے کی گارنٹی بھی نہیں، مستقبل اندھیرے میں ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہو، روزی کا معاملہ کیا ہو، ہمارے پیر جمے کہ نہ جمے، وہاں پہ لوگ کیسے ہوں، اور ہمارا کاروبار وہاں چلے کہ نہ چلے، اس کو چھوڑ کے کیسے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، زمین میں کشادگی پائے گا اور بہت زیادہ خوشحالی پائے گا، جو چیز چھوڑ کے گیا اللہ کے لیے اس سے بہتر پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، گھر سے نکلا ہجرت کرنے کے لیے، سے گھر سے نکلا دین ایمان بچانے کی نیت سے، کسی ایسی بستی میں جائیں گے جہاں ہم آزادی سے دین ایمان پہ عمل کر سکیں، ہمارے بچوں کو ایک بہتر اور صاف ستھرا اور دین ایمان سے بھرا ہوا ماحول مل سکے، اور راستے میں اگر اس کو موت ہو گئی تو اس کو ہجرت کا ثواب مل جائے گا، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس سے اجر لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کا اجر۔ ہجرت کے بہت ثواب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ترغیب دی، اس کی فضیلتیں بتائی ہیں ہجرت کی، بلکہ جو لوگ ہجرت کیے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں 40 سال پہلے جنت میں جا کے قیلولہ کریں گے، اور جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے مہاجرین، کہیں گے تم لوگ کون ہو گئے؟ تو کہیں گے ہم لوگ مہاجرین ہیں۔ حساب کتاب ہو گئے تمہارا؟ کہیں گے ہمیں کیا حساب کتاب دینا، ہمارا کیا حساب کتاب ہو، ہم تو پوری زندگی اپنے کندھے پر تلواریں لیے، اپنی جان خطرے میں لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے خانہ بدوشوں کی طرح سے،
बंजारों की तरह से हम अल्लाह के रास्ते में यहाँ से वहां से यहाँ दीन बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए फिरते रहे, हमारा क्या हिसाब किताब होगा? हमारा भी हिसाब किताब होगा। हम अपनी जान हथेली भी लेकर के एक जगह में ही ठहरे, जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह, हम हिजरत ही करते रहे पूरी जिंदगी। सके जमाना है हम क्या, हमारी हिजरत क्या, तो पूरी जिंदगी ऐसे कट गई। उसके बाद दरवाजा खोल दिया जाएगा। आम लोगों से 40 साल पहले जाकर के ये मुहाजिरीन वहां जाकर कैलूला करेंगे। ये इनकी फजीलत है कि और लोगों के मुकाबले अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का दरवाजा इनके लिए पहले ही खोल देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम पे भी अरसे हयात तंग किए गए, उनके ऊपर जुल्म किया गया, लेकिन इस हद तक नहीं किया गया था कि छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 13 साल तक आजमाया। बदला लेने की भी इजाजत नहीं थी। अगर कोई तमाचा मारे तो आप कुछ तक नहीं कह सकते, बदला लेने की इजाजत भी नहीं थी। आपको सब्र करना है, जुल्म सहना है अल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता था कौन है जो बड़े से बड़ी मुसीबतों को हमारे लिए झेल सकता है, कौन है जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बकिया मोहब्बत को किनारे लगा सकता है। 13 साल तक आजमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। जब देख लिया कि ये फल पक चुका है और ये सोना कुंदन बन चुका है और इसके ईमान इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब ये पहाड़ों से टकरा जाएंगे, उसके बाद हिजरत की इजाजत दी, एक इस्लामी रियासत कायम हुई। उसके बाद जिम्मेदारी अदा करता चला गया अल्लाह तबारक व तआला। अब नमाजें भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, ज़कात भी देने हैं। अब ये आपको एक छोटी सी फौज की टुकड़ी भी बनानी है। उसके अलावा अब आप दुश्मनों से सिर्फ बदला ही नहीं लेंगे, अब उनसे मुकाबला भी होगा और अब आपको उनका हाथ मरोड़ने की पूरी इजाजत है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने 13 साल तक जब जुल्म उनको सहने दिया गया, मारा, उनको अपनों को खोया, उन्होंने उनके सामने मार दिया गया, जान बचा कर सब कुछ छोड़ छाड़ करके मदीना गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मदीना गए, वहां भी सुकून से नहीं रहने दिया गया। मदीने पहुंचकर मदीने का घेराव किया। बदर ओहद की लड़ाई मक्के में नहीं हुई, बदर ओहद की लड़ाई, खंदक की लड़ाई, ये सब लड़ाई मदीने में जाकर के इन्होंने लड़ी, जब वहां भी नहीं रहने देंगे। बताइए, वो एजन कुर्बी का मतलब जाने भी नहीं दे रहे। हम शहर छोड़ के चलो, लोगों ने कहा हम शहर छोड़ देते हैं, अगर तुम्हें हमारे वजूद से तकलीफ है तो हम जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी नहीं। चोरी छुपे हिजरत की इजाजत मिली है। साहब राम ने एक एक करके दो करके चोरी छुपे हिजरत की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की बारी है कि पहले से कर दिए कि जाने भी नहीं देंगे, कुछ नहीं, मतलब कुछ बिगाड़ा भी नहीं, किसी का कुछ खाया भी नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। हत्ते खुबैब या खुद सुहैब जाने लगे तो कहा जा रहे हैं? कहा कि हम मदीने जा रहे हैं। तो कहा कि अच्छा, इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया हमारे शहर में, इतने बड़े ताजुर बने हमारे शहर में, ऐसे जाने देंगे हम? कहा कि अगर हम सब कुछ छोड़ दे तो इस चलता फिरता कारोबार, ये रुपए पैसे दिरहम और दिनार सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दे, अगर हम खाली हाथ जाना चाहें तो कहा जा सकते हो। सब कुछ छोड़ा, बड़े ताजिर मक्के के, सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल को जब पता चला, कहा खुबैब सुहैब ने फायदे का सौदा किया। 2-3 बार कहा उन्होंने फायदे का सौदा किया, उन्होंने फायदे का सौदा किया, मतलब दुनिया को छोड़ दिया दीन बचाने के लिए, फायदे ही का सौदा है। और अबू सलमा और उम्मे सलमा देखिए, अबू सलमा जब हिजरत करने लगे, उनकी बीवी साथ में थी, एक बच्चा साथ में था। अब जब हिजरत करने लगे तो आ गए, ससुराल वाले आ गए, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं मदीने जा रहे हैं, यहाँ कैसे रहे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी जान है, तुम उससे मालिक हो, तुम्हें तो जाने की इजाजत दे देंगे। ये हमारी जो बेटी है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि जहाँ चाहे तो फिरते रहो, घुमाते रहो, इसको नहीं इजाजत देंगे। उन्होंने उम्मे सलमा को ले लिया कि नहीं, साथ भी जाने देंगे तुम्हारी बीवी को। इस पर इनके घर वालों को ताव आ गया, अबू सलमा के घर वालों को, कि अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने जो बेटा था अबू सलमा का, उसको पकड़ लिया कि जब तुमने ले लिया तो हम, ये हमारा बेटा है, हम इसको भी नहीं जानते। छोटे वाले बेटे को भी, दूध पीता बच्चा था, उसको भी छीन लिया गोद से, और वही ससुराल और मायके वालों पे खींचा तानी में उस छोटे बच्चे का हाथ भी टूट गया, उखड़ गया हाथ, लेकिन रहम नहीं खाए। अबू सलमा अकेले चले गए, बेटा ससुराल में है और बीवी मायके में है, लेकिन वो ईमान बचाने के लिए, दीन ईमान बचाने के लिए जो गम था, जो जज्बा था जाने का, वो उसके अंदर बेदार रहा। उम्मे सलमा में जिस वादी से उनको छीना गया था, ये वाकया पेश आया था, उस दिन हर दिन सुबह वादी बतहा में हर दिन सुबह आ जाती थी और शाम तक बैठी बैठी रोती रहती थी। 1 साल तक वो अल्लाह की बंदी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतें, ऐसी बेटियां, ऐसी बेबियां हर घर में हो जो अल्लाह के लिए, दीन ईमान के लिए अपने शौहर का साथ दें और उसके लिए दुनिया वालों से दुश्मनी मोल लेने, अपने घर और मायके और ससुराल वालों के रिश्ते और मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर शौहर उनका हक पर है, अगर शौहर उनका दीन इस्लाम अल्लाह के रसूल के लिए कोई काम कर रहा है, तो ऐसी बीवियों की जरूरत है जो शौहर के हौसले को बढ़ाएं। वो 1 साल तक मामूली बात नहीं है,
हर सुबह आती थी, शाम तक बैठी बैठी रोती रहती थी। बेटा भी साथ में नहीं, बेटा भी छीन लिया गया है और शौहर भी चला गया। समझौते कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 1 साल तक उन्हीं के घर वालों में किसी ने देखा तो उनको रहम आया और कहा क्यों खामखा उसके शौहर और बेटे के बीच में खड़े हुए हो। उसके बाद बेटे को लिया और पैदल 500 किलोमीटर का मक्के से मदीने की मसाफत पैदल चल पड़ी गोद में बच्चे को लेकर के, शौहर से मिलने के लिए, दीन ईमान बचाने के लिए, दीनदार शौहर का साथ देने के लिए। 500 साल एक गैर मुस्लिम होते हैं, सारे लोग बुरे नहीं होते। उस वक्त एक काफिर मक्के का, उसके दिल में रहम आई कि अकेली औरत जा रही है, कोई खतरा ना हो। उसने साथ में उस्मान या कुछ नाम था उसका, उस्मान बिन तलहा इस तरह का नाम था, वो मदीने छोड़ के गया करके। ऐसे अल्लाह तआला मदद दे देता है। मदीने छोड़ करके गया, कहा देखो ये तुम जब बस्ती देने लगे मदीने की तौबा की, कहा इसमें तुम्हारा शौहर चली जाओ, फिर वापस आ गया वो। अल्लाह तबारक व तआला किससे काम ले ले। अल्लाह के रसूल हिजरत कर रहे हैं, तब भी साथ एक गैर मुस्लिम और एक गैर ईमान वाला दे रहा है। जरूरत उसकी थी, भरोसेमंद लोग मिल जाते हैं। अब्दुल्लाह बिन उरैक़ा लेसी क्या था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईमान वाला नहीं था, लेकिन उसके पास मक्के से मदीने तक पहुंचने के लिए जिस महफूज रास्ते का इल्म था, मुसलमानों के पास इल्म नहीं था। उस इल्म की जरूरत थी मुसलमानों को, वो भरोसेमंद भी था। ऐसे सफर में जब मक्के वाले मीटिंग बैठा चुके हैं और उनके हंगामे मजलिस हो चुकी है और ये नतीजा निकल के आ चुका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर ले रहा है, इब्लीस भी उस महफिल में शरीक हुआ। एक शेख नजदी बढ़ करके, और उसने मशवरा दिया। एक ने कहा कि इनको कत्ल कर देते हैं, कहा कि नहीं बात नहीं बनेगी, कत्ल कर दोगे नहीं, कहा कि उनको कैद कर लेते हैं, कैद करने से बात नहीं बनेगी। इनके साथी, इनके मानने वाले इतने जानसार हैं कि दुनिया का कोई कैद खाना उनको बदल ले सकता है। तो सारे कैद खाने को तोड़ करके, सारी रुकावटें खत्म करके वो उनको ले जाएंगे। कहा कि उनको भगा देते हैं, कहा ये भी सही नहीं है। इब्लीस ने कहा ये भी सही नहीं, इब्लीस आज इंसान कर करके आया था, ये भी सही नहीं है। उसकी बातों में वो जादू है कि किसी भी शहर, किसी भी बस्ती में मोहम्मद नाजिल होगा, उसके मानने वालों की एक बड़ी तादाद वहीं पे तैयार हो जाएगी। उसके बातों में जादू तासीर है। यहाँ से देश बदल करना भी ठीक नहीं। अबू जहल खड़ा हुआ, कहा मेरी राय यह है कि हर कबीले से एक नौजवान ताकतवर लड़ाका लिया जाए, इकट्ठा किया जाए और घर का मुहासरा करके एक बार में हमला कर दिया जाए और कत्ल कर दिया जाए। नतीजा ये होगा कि अकेले बने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वाले, पूरे मक्के वाले 12 कबीलों के 11-12 कबीलों से बदला लेने की ताकत नहीं रखेंगे, मजबूरन दियत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग सारे लोग मिलकर के सौंप दे देंगे। शेख नजदी जो इब्लीस का बहुत बढ़िया, ये अच्छा मशवरा। उसके बात हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पे घेराव कर लिया गया। एक करके सारे मुसलमान जा चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर को इजाजत बहुत बाद में मिली। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा तैयार रहना, इजाजत मिल गई है और निकलेंगे। और चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतने इल्जाम के बावजूद, काफिर हैं, काहिन हैं, सारा इल्जाम था, लेकिन कभी बेईमान नहीं कहा उन्होंने। कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद बेईमान है, कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद अमानत पर खयानत करते हैं। सब कुछ इल्जाम लगाने के बावजूद जान के पीछे पड़े हैं। कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन अमानतें अभी मक्के वाले अल्लाह के रसूल के पास रख रहे हैं। ईमान देखिए, अमानतदारी देखिए कि लाख दुश्मनी के बावजूद अब भी कोई चेहरा मोहम्मद से बेहतर अमानतदारी का नहीं मिल रहा। अमानतें भी रखवा रहे हैं, अमानतें भी रखी हुई, अमानत नहीं ली। अल्लाह के रसूल अली को कहा कि मक्के की कुछ अमानतें मेरे पास हैं, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं और तुम उनके दे करके बाद में आ जाना अमानतें। अपने बिस्तर पर उनको लेटाया और घर के सामने से निकल गए। आज एक मिट्टी ली और उनके चेहरे पे डालते हुए निकल गए। वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फागशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके एक पीछे दीवार खड़ी कर दी, एक आगे दीवार खड़ी कर दी, वो देख न सके। वो दीवार तो ऐसी दीवार नहीं थी, ये तो देखने वाली दीवार है। बहुत सारी दीवारें हमारी आंखों के सामने गैर मरई दीवार है तो नहीं दिखाई देती। अल्लाह तबारक व तआला ने वही दीवार जो गैर मरई दीवार खड़ी कर दी, देख न सके। बहुत दीवारें, बहुत रुकावटें हैं, कंधे पे किरामन कातिबिन बैठे नहीं देख पा रहे। एक दीवार हायल है, इब्लीस शैतान उसके चले आसपास रहते नहीं देख पा रहे। एक दीवार हायल है। अल्लाह ने बड़ी दीवार खड़ी कर दी और अल्लाह के रसूल निकल गए मिट्टी डालते हुए सरों पर। उधर से एक आदमी आया, कहा क्यों बैठे तुम लोग यहाँ पे? कहा कि बस इनका काम खत्म करना है। कहा तो सामने से तुम्हारे गए? कहा क्या बात करते हो, हम तो सोए भी नहीं, तो जाग रहे हैं। कहा यकीन नहीं यार, तुम अपने सरों पर मिट्टी देखी, मिट्टी भी डालते हुए गए, सर पे मिट्टी भी थी। और देखे खोल खोल के देख रहे थे दरवाजे के बीच से आड़ से, देखे कि अल्लाह वो लेटे हुए, चादर वही थी, अल्लाह के रसूल ही थी। अतली लेटे हुए तो समझते अल्लाह के रसूल लेटे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत का बंदोबस्त वहीं से किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखी, वहां से निकल करके मदीने के रास्ते पे नहीं गए, गारे सौर की तरफ गए। गारे सौर वो यमन के रास्ते पे पड़ता है। जानते थे कि निकलेंगे तो लोग मदीने के रास्ते पे तलाश करेंगे, इस रास्ते पे तलाश नहीं करेंगे। उधर गए, 3 दिन वहां थे, वहां भी पहुंचे लोग, वहां गार के दहाने तक पहुंच गए। हज़रत अबू बकर को घबराहट भी हुई कि अल्लाह के रसूल अगर पांव की तरफ देख लिए तो हम पकड़ लिए जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि
मा ज़न्नुका बिइस्नैन सालिसुहुमा अल्लाह। अबू बकर, उन दो लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका तीसरा अल्लाह हो? मतलब अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी और मशीयत से ये सफर तय हो रहा है, उसकी निगरानी में है। न मत डरो, दो नहीं है, तीसरा अल्लाह है, उसकी पल पल की निगरानी रख रहा है और उसी की मर्जी और मशीयत से सफर तय हो रहा है। घबराओ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की, रास्ते में सुराख ने पीछा भी किया इनाम के लालच में, सौंदों के लालच में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वहां भी हिफाजत की। घोड़े का पांव फंसा, एक बार नहीं 3 बार फंसा, घोड़े से गिर गए। घोड़ा जब निकला तो खुद बयान करते हैं कि उसके पैर की जगह से हमने धुआं आसमान की तरफ बुलंद होते हुए देखा। गैर मरी ताकतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही थी फरिश्ते। और दूसरी चीजें, वो ईमान भी ले आए और अमान भी तलब की। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत से वहां तक पहुंचाए। तो अगर कोई दीन और ईमान बचाने के लिए, अल्लाह उसके रसूल की हिफाजत के लिए अगर कोई उठ खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करता है। इसलिए अल्लाह ने कहा एक कदम आओ, 2 कदम चल करके आएंगे। लेकिन हम ही हार मान जाते हैं, हम ही हालात से समझौता कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहिफाजत मक्के तक अल्लाह तबारक व तआला ने पहुंचाया। रास्ते में मौजज़े जाहिर होते रहे, रास्ते में मदद किस्म किस्म की अल्लाह तबारक व तआला भेजता रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके क़ुबा में जो पहले ही से मुसलमान मदीने के 70-72 लोग थे, अल्लाह के रसूल वही तो आकर के कहे थे। जब 4 लोग थे, 4 से 12 हुए, 12 से जब 12 हुए थे तो मुसाब बिन उमर को अल्लाह के रसूल ने भेजा, जाओ हालात साजगार, यहाँ पे दावत का काम करो। 70 लोग 72 लोग मुसलमान हो गए। उन्होंने तो आकर के कहा कि चलिए, अल्लाह के रसूल को भी ख्वाब में दिखाया गया कि हिजरत के लिए इजाजत जमीन की तरफ दी गई मुसलमानों को। 2 पहाड़ियों, काली पहाड़ियों के दरमियान है, मदीने की तरफ इशारा था, खजूरों वाला इलाका है। और वो भी आकर के कहे अल्लाह के रसूल चलिए। हर घर में जब इस्लाम पहुंच गया तो नबूवत के 13वें साल आकर के सिफारिश की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ चुपके से मीटिंग के साथ चलिए, बहुत हो गया। और हमारा दिल खोल रहा है देख देख करके कि आप पर, आपके मानने वालों पर इतना जुल्म मचने वाले कर रहे हैं। अगर कहें तो हम अभी धावा बोल दें, हज करने आए थे, हम कहें तो अभी अगर ज्यादा खतरा हो तो अभी हम इनको 2-2 हाथ कर लेते हैं। मक्के में आकर के इतना अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर ईमान की ताकत और अल्लाह के नबी की मोहब्बत इतनी पैदा कर दी कि 70-72 लोग आकर के पूरे मक्के वालों से लड़ने के लिए तैयार थे। अगर ऐसे नहीं जाने देंगे तो हम लड़ के ले जाएंगे आपको, चलिए आप, हमारे यहाँ एक महफूज माहौल है। उसके बाद हज़रत अब्बास जो कि भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने खतरे का एहसास दिलाया कि लोगों सुनो, समझ रहे हो, मोहम्मद को ले जाने के मतलब समझ रहे हो, तमाम गोरे काले और पूरी दुनिया वालों से दुश्मनी मोल लेना है, सह पाओगे? सारे लोग दुश्मनी सब तो तुम्हारे ऊपर तिल पड़ेंगे तलवारें लेकर के, तुम्हारे अपने चहेते, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान वाले जो कत्ल कर दिए जाएंगे मोहम्मद की वजह से, दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे मदीने पे हमला करेंगे, कारोबार तबाह हो जाएगा, क्या करोगे? ऐसा ना हो कल को तुम्हारा नुकसान देख करके अपना बचाव ढूंढने लगो और हमारे भतीजे का साथ छोड़ दो। अगर छोड़ना है तो भी छोड़ दो, मोहम्मद अभी अपने कुंबा कबीले में है, अपने वतन में है, महफूज है, कल को छोड़ना इससे बेहतर आज ही छोड़ दो। हज़रत काब खड़े हुए, अंसारी सहाबी खड़े हुए और कहा कि हमने आपकी बात सुन ली। कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत अब्बास से कहा हमने आपकी बात सुन ली, अल्लाह के रसूल आपको क्या कहना है, आपको जो कहना है कहें, जिस बात को बयान लेना है ले। ये जुमला बता रहा था अंसारियों का कि किस कदर वो एतमाद से खड़े हुए हैं और हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जब उन्होंने खतरे का एहसास भी दिलाया है। भी अगर अल्लाह उसके रसूल को आप उनका रिश्ता बचाएंगे, दीन ईमान पे अमल करेंगे तो आज भी खतरात कम नहीं हुए हैं, आज भी कदम कदम पे आपको चैलेंज है। और गैरों से क्या शिकायत, अपनों से मुकाबला करना पड़ता है, कलमा को मुसलमान भाइयों से मुकाबला करना पड़ता है। न यकीन आए तो शादी ब्याह के मौके पर आप इस्लामी तरीके से शादी करके देख लें, कई चेहरे बिगड़ जाएंगे, कई रिश्तेदारियां आपसे टूट जाएंगी, महज इस वजह से आपने अल्लाह उसके रसूल के हिसाब से क्यों शादी की, क्यों हमें नहीं पूछा, क्यों खानदानी रसूल रिवाज पे फुट डाल दिया आपने, कई चेहरे बिगड़ जाएंगे। गैरों से क्या शिकायत है, वहां तो गैरों से शिकायत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे पहुंचाया, मुसलमान पहले ही से वहां अल्लाह के रसूल ने बैत की तो वहां भी जब बैत की 5 चीजों पर तो वहां भी कहा, वहां भी कि चुस्ती और सुस्ती दोनों हालतों में मेरा साथ दोगे और गरीबी और अमीरी दोनों हालतों में खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे। अल्लाह के मामले में, अल्लाह उसके रसूल के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे तुम। जहां अल्लाह उसके रसूल की बात आएगी बस वही, दुनिया क्या कहती है, कौन क्या कहता है नहीं देखना है, अल्लाह उसके रसूल क्या कहते हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी खुशनुदी तुम्हें लेनी है। दुनिया वालों की खुशनुदी से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है,
मलामत नहीं करोगे, और जब तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो ऐसे मेरी हिफाजत करोगे जैसे अपने बेटों की, अपने घर वालों की हिफाजत करते हो, मेरी ऐसी हिफाजत करोगे। हम तैयार हैं। बिला चूचरा के सब ने बैयतियों ले गए और साथ दिखाया भी, साथ निभाया भी, आखिर तक दिखाया। साहब ने जो वादा किया था उस वादे से कहीं बढ़कर आपकी हिफाजत की, हुआ भी वही। उनके चहेते मारे गए, पूरे जितने उनके मुआहदे थे सब टूट गए। आसपास के और लोग जितने लोग थे सब उन पे पिल पड़े दुश्मन बन करके, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, अपनों को खोया, लेकिन वो वादा जो उन्होंने किया था, जो मुआहदा अल्लाह के रसूल के साथ किया था, वो कायम रखा। तो दोनों तरफ आजमाइश थी। हिजरत करके जो गए वो भी, और जो वहां थे जिन्होंने पनाह दी, अंसारी, जिनका अल्लाह का बड़ा मदद देने की वजह से कयामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंसार कैसे मदद करने वाले, आने वाले अपने भाइयों के लिए बाहें फैला दी, जायदाद में आधा हिस्सा दिया। यहाँ तक कि अगर किसी की 2 बीवी थी तो उसके लिए कहा कि एक बीवी को हम तलाक दे देते हैं, आप उनसे शादी कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों के लिए अपनों से ज्यादा ख्याल किया। अल्लाह के रसूल वहां पहुंचे और हर दिन मुसलमान मदीने के इंतजार करते थे। खुशी के लम्हे ऐसे थे कि वो इंतजार करते थे, आ करके सुबह से लेकर दोपहर तक धूप में इंतजार करते रहते थे। हर रक में मकाम पर इंतजार करते करते थक के जब धूप तेज हो जाती थी वापस चले जाते थे। उनका चहेता आया नहीं, उनका महबूब भी आया नहीं। एक दिन वापस हुए थे इंतजार करके, एक यहूदी अपने टीले पे चढ़ा था किसी काम के लिए, और उसने देखा कि 3-4 सफेद कपड़े में मलबूस लोग आ रहे हैं। वो पहचान गया कि ये मदीने के नहीं है, शायद इन्हीं का अरब वाले इंतजार कर रहे हैं। जोर से आवाज लगाई अपने टीले से, आए अरब वालों आओ, ये तुम्हारा नसीब आ रहा है, तुम्हारा महबूब आ रहा है, तुम्हारा नबी आ गया है। ये सुनना था कि खुशी की तकबीरात पूरे मदीने में गूंजी, तलवारें ले लेकर के इस्तेमाल के लिए सैकड़ों लोग आगे आ गए। बच्चे, जवान, बूढ़े, औरत, मर्द, सब में खुशी का तराना था। ये जानते हुए कि जिस शख्स को हम पनाह दे रहे हैं इसकी वजह से हमारे नुकसान किस हद तक हो सकता है इसका अंदाजा था, लेकिन मोहब्बत इस कदर थी कि जानते थे कि अल्लाह का करम भी होगा। एक चहेता हमारा नबी, हमारा महबूब हमारे दरमियान आया है, उसकी खैर और बरकत से भी हम फैज़याब होंगे। इस्तकबाल किया, बच्चियां खुशी के तराने गा रही हैं। अशरफुल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूस फीना जीता बिल अम्रिल मुताई। 14वीं रात का चांद तुलू हुआ हमारे दरमियान, जो चीज लेकर के आया उस पर अमल करना वाजिब है, अल्लाह का शुक्र वाजिब है। गरीब थे बेचारे, ज्यादा मालदार नहीं थे अंसार, लेकिन हर कोई सामने आकर के खड़ा होता था, अल्लाह के रसूल के रास्ते रोकता था, नकेल थाम लेता था कि अल्लाह के रसूल जानो माल पर शुरा हाजिर है, आइए। लेकिन अल्लाह के रसूल कहते थे खल सबीलहा फइन्नहा मामूरा, इस उतनी को छोड़ दो, इसे भी बताया गया है कहां बैठना है, इसका रास्ता छोड़ दो, इसे हुक्म दिया गया है। पूरा सफर एक अल्लाह की निगरानी में हो रहा है। अल्लाह के रसूल अबू बकर और दूसरों को छोड़िए, ऊँटनी तक को भी नहीं दिया गया तुम बैठना कहाँ है। खल्ली सबीलहा फइन्नहा मामूरा, ऊँटनी आगे बढ़ती गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और ऊँटनी थोड़ी आगे बढ़ी, फिर पीछे मुड़ के देखा, फिर आकर के वहीं बैठ गई और वहां बैठी जहां मस्जिद नबवी है। अल्लाह के रसूल ने कहा खुदल मंजिल इंशाअल्लाह, यहाँ पे ठहरना होगा इंशाअल्लाह। वहीं पे मस्जिद नबवी की तामीर की, उससे पहले 10 दिन क़ुबा में थे, वहां भी सबसे पहले काम हुआ अल्लाह के घर की तामीर की। मदीने में आए सबसे पहले वहां भी अल्लाह के घर की तामीर की, बढ़ बढ़ करके सब चीजें की। तो ये आगे का वाकयात और भी बहुत सारे अहम है मदीने पहुंच करके, लेकिन दिखाना यह है कि किस कदर खतरे मोल लेकर के दीन और ईमान बचाने के अलावा तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल को खाने काबा को देखकर जाते रोए भी जाते, आंखों में आंसू भी थे और कहा भी था ऐ हरम मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं ना चाहता अगर तेरे यहाँ वाले तेरे बाशिंदे। नबी ने खाने काबा को देखा और फरमाया मेरे प्यारे हरम मेरी तेरी फुरकत तरफ आया, तेरे फर्जंद अब मुझको यहाँ रहने नहीं देते, तेरी पाकीज़गी का आवाज कहने नहीं देते, शौक से खुशी से नहीं जा रहा हूँ, मजबूर कर रहे हैं, इस वजह से दीन ईमान बचाने के लिए जा रहा हूँ, वरना तुझसे जुदाई मेरे लिए तकलीफ दे है। तो वतन की मोहब्बत, अपनों की मोहब्बत की हर किसी के यहाँ होती है, लेकिन जहां अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत की बात आए, उनके बचाने की बात आए, तमाम मोहब्बतों को तस देना, तमाम कराबतों को छोड़ देना, यही हिजरत का पैगाम है। सहाबा ने यह करके दिखाया, अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया। उसके बाद जो इनाम इकराम की बारिश हुई अल्लाह तबारक व तआला के, वो भी हम और आप देखते हैं, हम और आप जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो न दुनियावी की जिंदगी हमें, न दुनिया में हम नाकाम होंगे न आखिरत में। आखिरत भी तो कामयाबी की गारंटी है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है और वही असल कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हिजरत के तकाजे को समझने, हिजरत को समझने, और कभी जिंदगी में ऐसा मौका है दीन ईमान बचाना हो या दुनिया को अपनाना हो तो दीन ईमान बचाने की तौफीक दे बारिला। हमसे जितना हो सके तो हम इस्लाम पर, दीन पर और ईमान पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।